So welcome everyone. In this session, I will discuss the paper 2 mains 23 analysis, and I will discuss about what kind of question they're asking, how they are linked to the previous year questions, and the sources of these questions. तो इस सेशन में आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा कि पेपर 2 मेंस 23 कॉमर्स ऑप्शनल की सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से ये पेपर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिंक किया है, प्रीवियस ईयर में क्या इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और क्या ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल this is a structure that I will use. I will use the question. I will show you the question, the subtopic from where this is been asked, number of marks, the what is the level of difficulty, then is it repeated or new question, and then references from our study material and the test series. So Diademy IAS is providing the study material, test series, and foundation course, and how these questions are coming from these sources that I will also discuss. Okay, so let's start. First we will start from the organization theory. So topic A is the organization theory. ये आपका सबसे first topic आता है. Here the first question is 1A. What are the external environment factors that are essential to an organization? Very popular question, and this subtopic is external environment of the organization. Directly mentioned है आपका syllabus में. 10 marker question है, small question है. Question is very easy, straightforward, direct question है. And this question is repeated multiple times. You see 16, 17, 21. So very predictable question. Now in our test series of mains 23, we gave this question. This question is changing external environment has always been a greater impact on organization. In the light of this statement, discuss the major changes in the economic environment and salient features. Okay, so the first part is directly this question. This is the sectional test of organization theory of mains 23 test series. ये आपका source हो गया, ठीक है? Now next question is discuss the main propositions of neoclassical theory. Again this is very repeated question. आप देखेंगे last 5 years only, 2016 and 19 this question has been repeated twice. इससे पहले भी कई बार आ चुका है. Okay, 10 marker है, easy question है, simple straightforward question है. In our test series, in the full length test, we have given this question about the criticism of the neoclassical theory. Okay, question आपका proposition पे था, हमारा question criticism पे था, but the topic is same. Okay, now the next question, that is a 1C, describe the relationship between the organization culture and climate. This is moderate level of difficulty, a bit applied question, direct question नहीं है. Okay, this question is from the organizational culture. Again it is a 10 marker, compulsory question में आता है, easy है. 2022 we got the question about the culture. Okay, so this question is available, the answer is available on page number 295 of the Diademy study material. You can check the sample of the study materials from our team. We will also give the link in the description box, and the samples are also posted on the Telegram channel. You can contact our team, they will also give you. This study material is providing the solution to all the answers of the mains 23 questions that I am mentioning. इसलिए मैंने mention किया हुआ है. अगर आपके पास वो मटेरियल पहले से है तो आप चेक कर सकते हैं. आपने अगर टेस्ट सीरीज पहले सब्सक्राइब की थी तो आप चेक कर सकते हैं. That is why I am mentioning the question number और page number of the test series और the book. ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए. Now next question is, how is the power used as a tool of organizational control? Elaborate in detail the various sources of power. तो यहाँ पर दो सब क्वेश्चन दिए, 20 marker question है. This question is from the power chapter. Again very important chapter, and here this is easy question I will say, because two subparts are there but both are very predictable. This type of question again being repeated so many times. 3 questions you can see, 91 में आया, 16 में, 2009 में आया. This is available on page number 330 of the Diademy study material. Check कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा. Now next question is, profit maximization as a goal is being gradually considered less important in many organizations. Express and justify your opinion in the above statement. देखिए, this question is coming in the organization theory, so we have to link it with the organizational goals. Okay, this question also normally come in the financial management. In the financial management we have to link and we have to compare it with the wealth maximization. But here not only we have to link with the wealth maximization, but we also have to tell about the other multiple goals. Okay, that apart from profit maximization there are multiple other goals, the types of operative goals which have been
टॉक्ड अबाउट बाय चार्ल्स पैरो। तो चार्ल्स पैरो ने वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिव गोल्स दिए हैं, पेज नंबर 80 पे हमारे मटेरियल पे अवेलेबल हैं। सो वी कैन मेंशन दैट इट इज ए मॉडरेट क्वेश्चन बिकॉज मैनी पीपल दे विल जस्ट discuss the financial aspect, but if it is a question of the paper 2, then we should always link it with the organizational goals. 20 मार्कर क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पर है, और 2022 में भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पे क्वेश्चन आया था, नॉट द सेम क्वेश्चन बट फ्रॉम द सेम टॉपिक. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चंस पे हमारा आया था. नेक्स्ट इज identify some changes observed in the demographic composition of Indian IT sector. Describe the impact of these changes have on the organizational design and structure. This is very repeated theme, not the question but the theme. Okay, see the topic that is there in the syllabus is the impact of IT on the organizational structure and design. ठीक है, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है. फर्स्ट कंपोनेंट इज चेंजेस इन द डेमोग्राफिक कंपोजिशन. ये हम लोग एचआरएम में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन और चेंज पे. ये हम डिस्कस करते हैं कि दीज पीपल आर क्वालिफाइड, एजुकेटेड, स्किल्ड एंड दीज आर यंग एंड फीमेल, सो दे नीड मोर अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, फ्लैटर स्ट्रक्चर, more span of control. Then there is a high level of integration, use of technology. It overcomes the subunit orientation. Then it introduces the concept of self-managed team, cross-functional teams, right? Contingent workers. All these things we discuss. So again, this question is bit moderate, I will say, not easy. ये आपका moderate level of difficulty है, right? This can be answered from two aspects. What is the impact of people on the structure? Type of human resource impacting the organizational structure. Page number 194 of the material, and page number 247, the innovations in the organizational design. Okay, how various innovations are happening in the organizational design. This is the second component we have given in the book. Okay, total 90 marks questions आए थे आपके from the organizational theory. Now coming to the organizational behavior, ये आपका second subject है. क्वेश्चन 1E, देखिए क्वेश्चन 1 जो है कंपल्सरी होता है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ई क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे आया हुआ है. एक्सप्लेन द 3 फॉर्म्स ऑफ इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बताया गया है. ओके, 3 फॉर्म्स बताया गया, राइट. सो हियर अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, 10 मार्कर है, रिपीटेड थीम है, और पेज नंबर 303 पे हमारा ये मेंशन्ड है, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, दिया हुआ है डायरेक्टली. ठीक है. Next question 2C, critically analyze the path called theory of leadership. Here the question is about leadership theories and styles. Okay, very repeated question. 2021 में लेटेस्ट रिपीट हुआ है, इससे पहले कम से कम 5-6 बार रिपीट हो चुका है. Okay, question this question was directly asked in the full length test number 2. Means 23 का जो हमारा full length test था, FLT2 मतलब full length test, डायरेक्टली वहां पर हमने इसको पूछा था. Okay, next is how is Herzberg's motivation hygiene theory useful to organization? List any 5 hygiene factors. This question is easy, direct, 20 मार्कर है. Herzberg की थ्योरी को पूछा गया है, और 2018 में क्वेश्चन आया है इन आवर ओबी टेस्ट नंबर 2, मेंस 23 का जो टेस्ट थे हमारे, वहां पर हम लोगों ने Herzberg को कंपेयर करके पूछा है फ्रॉम द अदर थिंकर्स. सो हियर डेफिनेटली यू हैव टू नो द कंटेंट ऑफ Herzberg. अगर आपने टेस्ट अच्छे से लिखा होगा तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिला होगा. Next is describe the importance of quality of work life in improving the employees' work efficiency. Quality of work life is a direct topic in the syllabus of organizational behavior. 20 marker question है, 2018 में similar question repeat हुआ है, and page number 260 पे we have given the importance of quality of work life. Direct आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे. Next is question number 3C, delineate any 5 complementary transactions in relation to transactional analysis. 10 marker question transactional analysis chapter से है, easy है. 2019 और 2021 में repeated theme है transaction analysis, and in our test also we have asked what is the write the short note on the transactional analysis. हम लोगों ने एक broader question पूछा है, but यहाँ पर एक specific aspect पूछा गया है. So this aspect we have to cover from the study material. This is given in our study material very clearly. Okay. Next question is question number 4. Describe the perceptual process. Explain the selection, organization and interpretation of stimuli. Very simple question, direct question, very predictable question. आपको study material में मिलेगा, test series में मिलेगा.
20 मार्कर में पूछा है और बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक है, ठीक है। हमने वी हैव मेंशन ओनली फ्यू प्रीवियस ईयर्स बट हमने कोशिश की है कि चलो एक साल तो मेंशन कर देते हैं, इससे पहले भी वैसे रिपीट हुआ है ये, राइट। इन आर FLT2 full and test 2 of the mains 23 test series, we have again asked the same question. Explain the steps involved in transformation of perceptual input into the output. Same question पूछा गया है। देखिए टेस्ट सीरीज के आपको दो बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले तो आपको रिवीजन के लिए डायरेक्शन मिल जाती है, आपका शेड्यूल डिसिप्लिन हो जाता है, फीडबैक मिल जाता है, ये एक पर्पस होता है। सेकंड पर्पस, सम क्वेश्चन विल डायरेक्टली क्लिक फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। अगर वो क्वेश्चन डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि यू आर एबल टू राइट द बेटर आंसर ऑन दैट एरिया, दैट गिव्स यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स इन दैट क्वेश्चन विच गिव्स यू द एज। तो हमें इसको अंडरस्टिमेट नहीं करना है। अब मैं आपको शो कर रहा हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आते हैं टेस्ट सीरीज से, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपने टेस्ट सीरीज अच्छे से प्रैक्टिस की है, आपने मॉडल आंसर अच्छे से पढ़ा है, तो आप एग्जाम में बेटर आंसर लिखोगे। एवरेज तो आप वैसे भी लिख ही लेते, देखिए लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी आप एवरेज आंसर तो लिख ही लेते, लेकिन इसकी वजह से आप बेटर आंसर, अबव एवरेज आंसर लिख पाएंगे। ये मेन पॉइंट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ कैन द प्रैक्टिस ऑफ OB हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट। दैट बेसिकली दे आर आस्किंग द सिग्निफिकेंस ऑफ OB, वेरी एक्सपेक्टेड एरिया, सिंपल एरिया, अप्लाइड क्वेश्चन है, बिकॉज दे आर सेइंग हाउ डज इट हेल्प इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए दिस ईयर दे आर आस्किंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ मेनी कॉन्सेप्ट। So for practical application, we should first be aware about the basic concept. Basic concept को aware होना है और फिर हमें उसको apply करना है practical life में। तो यहाँ पर practical application उन्होंने पूछी है production cost में कैसे help करेगा। This is the practical application that we have to do ourselves. हाँ, हमने importance दिया हुआ है OB का पेज नंबर 40 पे, वो आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर हम लोगों ने सपोज लिखा हुआ है efficiency increase करेगा। अगर efficiency increase करता है तो definitely it will decrease the cost of production. This is how you have to link. तो हमारा जो फोल्डर मटेरियल है वो हमारे टेस्ट सीरीज में या बुक में अवेलेबल है, क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से उसको डिलीवर करना है। दैट मींस वी हैव द कंटेंट, वी हैव टू डिलीवर एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो ये आपका 110 मार्क्स का आ गया, ओके। तो बेसिकली सेक्शन ए टोटल 200 मार्क्स का आता है, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट मिनिमम 2 क्वेश्चंस दैट इज 100 मार्क्स और मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस दैट इज 150 मार्क्स। Now coming to the section B, human resource management. Sir, how to score the marks in the human resource management? Give more and more example. Organizational theory में आप thinker का नाम दीजिए, concept दीजिए, exact definition दीजिए, flowchart दीजिए, code दीजिए। Organizational behavior में भी same करना है आपको, लेकिन human resource management में apart from thinker quotation, example is very crucial because this is very lively subject. बहुत example आपको देने चाहिए। So this first question itself is an applied question. How does the policy of flexi time affect organizational functioning? This is question which was asked in the section A. Question number 1D है, section A में पूछा गया है, OB में पूछा गया है, but because we deal it with the organizational in the human resource management, that's why I have classified here. हमारा human resource management की जो बुक है पेज नंबर 100 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। This is moderate because थोड़ा हमें अप्लाई करना है इसको। We have to apply how it is going to affect the organizational functioning. Function को कैसे impact करने हैं, flexi time, okay? Personality पे क्या impact हो सकता है, motivation, कैसे हम उसको अगर change होगा तो कैसे manage करेंगे, conflict को कैसे manage करेंगे, क्या practices कैसे design करेंगे job को, structure में क्या changes ला सकते हैं, right? तो ये सब चीजें, virtual organization हमारा एक तरह से हम इसको use कर सकते हैं। All these things are answer of 1D. 5A, a good job description leads to improved employee satisfaction. Importance of good job description we have to tell. 10 marker easy, 21 में क्वेश्चन आपका जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर आया है, पेज नंबर 78 हमारे मटेरियल में अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं, ओके। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीटेड फ्रॉम 2011 एज इट इज। वहां पर इन्होंने वर्ड यूज किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, यहां पे यूज किया है पर्पस ऑफ एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। पेज नंबर 133 एज इट इज आपको आंसर मिलेगा टू द पॉइंट। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टू द पॉइंट आंसर? अगर डायरेक्टली आपके स्टडी मटेरियल से हिट हो गया, आपने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, थोड़ा वैल्यू एडिशन कर दिया, आपको 70% मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। तो जो अप्लाइड क्वेश्चंस है वहां पर आप अपना माइंड अप्लाई करेंगे, और जो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आएंगे,
आपका काम हो जाएगा. इन आवर फाउंडेशन क्लासेस वी आर राइटिंग सम एग्जांपल्स, डायग्राम्स, इंटरलिंकिंग कर रहे हैं. अगर वो कर दिया तो फिर आपका सोने पे सुहागा. ओके. नाउ द नेक्स्ट एरिया इज क्वेश्चन नंबर 6B. एम्प्लॉय वेलफेयर इज जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियंस. कमेंट ऑन द अबव स्टेटमेंट. 20 मार्कर है. एम्प्लॉय वेलफेयर चैप्टर से है, इजी है. 2011 में दे हैव आस्क्ड सिमिलर क्वेश्चन, बट हमारे मटेरियल में एक टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर. हियर वी हैव गिवन दैट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेड यूनियन, एंड यू हैव टू इलैबोरेट दिस कंटेंट. इसको सिर्फ आपको एक्सपेंड करना है, जस्ट एग्जांपल्स ऐड करने हैं और आपका आंसर रेडीमेड हमारे पेज नंबर 277 पे रेडी है. ओके. तो ये भी आंसर आपका डायरेक्टली किया जा सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब एनालिसिस. दिस क्वेश्चन इज इंटरलिंकिंग टू कॉन्सेप्ट. In our study material, we have the comparison between job evaluation and performance appraisal, but we don't have this direct question answer in our material. But if you are conceptually clear about the activities of the job analysis, then you can link it with. तो आपका conceptual clarity यहाँ पे आपको help करेगा. 10 मार्कर है. पेज नंबर 201 पे हमने एक्टिविटीज की लिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से इसको लिंक कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7C. Placement problems are arise more in larger and geographically scattered organizations. So this is very practical situation. Like there are multi-location organizations like NTPC है, Reliance है, so many companies are there. तो वहाँ पर problem आती है placement की, कि right person को right कैसे place करें. So many problems arise. So the problems of placement we have given in the page number 145. You have to link this with the practical life. This is also application based question. This is easy but application based. थोड़ा सा mind apply करना पड़ेगा आपको. Next is describe the scope and relevance of HRM in organizations today. क्या स्कोप है और रेलिवेंस है. अगेन दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. मटेरियल में पेज नंबर 29 पे स्कोप लिखा हुआ है, पेज नंबर 40 पे रेलिवेंस लिखी हुई है. रेडीमेड आंसर है. 2022 में भी हमारा इवोल्यूशन पूछा गया है एचआरएम का. वेरी वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, आंसर करके आना चाहिए अगर आपने क्वेश्चन चूज किया है, और 70% मार्क्स आप उसको लेके आइए इसमें. ओके. हमारे मटेरियल में डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो. कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो हमारे मटेरियल से, हमारी टेस्ट सीरीज से. कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा. वो हमेशा ही अप्लाई करना पड़ेगा. आप किसी भी मटेरियल, किसी भी टेस्ट सीरीज से 100% क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे. हाँ, टॉपिक आपको जरूर मिलेंगे. मैं आपको टॉपिक शो कर रहा हूं. टॉपिक हमने कोई मिस नहीं किया है. कोई भी टॉपिक हमारे स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज से नहीं छुटा हुआ है. टेस्ट सीरीज में लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं. टेस्ट सीरीज में आपको कुछ चीजें छुट सकती हैं, बट स्टडी मटेरियल में कुछ भी नहीं छुटेगा. कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है. और फाउंडेशन क्लास में हम वैल्यू एडिशन लगा के उसको एकदम 80% पे ले आते हैं. नेक्स्ट इज हाउ डू ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज. अगेन दिस क्वेश्चन इज 10 मार्कर, इजी है. और आपका ये भी क्वेश्चन आपका टेस्ट सीरीज में पूछा गया था. एंड पेज नंबर 168 पे हम लोगों ने इस पे डायरेक्ट आपको कंटेंट मिलेगा, द टूल्स टू आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स. वेरी वेरी सिंपल प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन. Next comes the topic of industrial relations. Question, why is controlling absenteeism necessary? यानी कि यहाँ पे हम बताएंगे कि what are the adverse effect of absenteeism which we need to control. तो ये कंटेंट हमने अपने मटेरियल में दिया हुआ है, और क्वेश्चन ये रिपीटेड है 2116 में. सिमिलर क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, नॉट द एग्जैक्ट बट सिमिलर लाइंस पे एब्सेंटिज्म टॉपिक पे. राइट ए नोट ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग. सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम बल्ले बल्ले करने वाला क्वेश्चन है. और ये क्वेश्चन आपका बार बार सो मेनी टाइम रिपीट होता है. हमने अपनी टेस्ट सीरीज में इसमें से माइक्रो डायमेंशंस पूछे हैं कि फेसेस क्या होते हैं और आपके फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या स्टेप्स लेंगे. तो ये सब मिला के और बेसिक डेफिनेशन मिला के आपका ये आंसर रेडी हो गया. हमारी टेस्ट सीरीज में FLT4 और IR सेक्शनल टेस्ट 6 में हम लोगों ने आंसर दिया हुआ है. नेक्स्ट इज द कंपटीशन अमंग इंडस्ट्रीज ऑफन लीड्स टू लेबर टर्नओवर. डू यू एग्री. तो ये बेसिकली पोचिंग वाला जो केस है आपका, आजकल काफी चलता है. कंपनीज आर पोचिंग ईच अदर्स एम्प्लॉइज. ओके, वी हैव गिवन इट इन द टेस्ट सीरीज, एग्जामिन द रीजंस एंड इंपैक्ट ऑफ ग्रोइंग लेबर टर्नओवर इन इंडियन कंपनीज. तो जिसमें से एक रीजन ये भी है. In our test series we have given a very general question, here it is a very specific question, so we have to elaborate this aspect very detail. But हाँ, टेस्ट में से टॉपिक तो क्लिक हुआ है ना. यहाँ माइक्रो पूछा है, यहाँ पे मैक्रो पूछा है हमने, राइट. तो प्रेडिक्टेबिलिटी है.
Next is how do the trade unions contribute to the betterment of employer-employee relations described. Trade union question है, 20 मार्कर है, पेज नंबर 36 ऑफ डायडमी स्टडी मटेरियल दिया हुआ है. रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस इन द इंडस्ट्रियल पीस एंड द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉइज लाइफ. अगेन सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, पेपर इससे आसान नहीं हो सकता, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं. ILO इज स्टिल रेलिवेंट फॉर मॉडर्न इंडिया, इलाबोरेट इंटीरियर. ये तो इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है. दिस टाइम थोड़ा उन्होंने हल्का सा इसको चेंज किया. अभी तक वो पूछते थे कि क्या कंट्रीब्यूशन ILO का है, अभी पूछ रहे हैं कि क्या अभी भी रेलिवेंट है. आंसर इज यस. अभी बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट हैं जहां पर हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं. पेज नंबर 187 पे हमने इसको दिया हुआ है. इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी फंक्शंस इन इंडिया थ्रू द डिमार्केशन ऑफ लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन एंड अकॉर्डिंगली मैटर्स ऑफ पार्टिसिपेशन. तो WPM और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात की गई है. और हमारी टेस्ट सीरीज में देखिए क्वेश्चन नंबर 8A वेरियस टाइप्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन, ये लेवल्स की हमने बात की है. और उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी और WPM पे क्वेश्चन पूछा है IR सेक्शनल टेस्ट में, फुल एंड टेस्ट 2 में और IR सेक्शनल टेस्ट में. चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एविडेंस अवेलेबल है. क्वेश्चन डायरेक्टली क्लिक कर रहा है. बाय गॉड ग्रेस दिस ईयर द टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस हैव बीन डायरेक्टली हिट. आवर स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी एंड दिस इज वेरी मोमेंट ऑफ प्राउड. बाकी मार्क्स देखते हैं कैसे आते हैं बच्चों के, बल्ले बल्ले मार्क्स आएंगे. क्वेश्चन नंबर 8B, डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ IR इन द इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. स्टेटस पूछा है और हम लोगों ने क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, हाईलाइट द चेंजिंग ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द इंडियन PSCs. फुल एंड टेस्ट 4 में हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था. 2022 में भी सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन आया है. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन आई वांट टू हाईलाइट कि भाई देखिए, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए. तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, द बेस्ट स्ट्रेटजी, द टॉपर्स स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी आपकी बहुत सिंपल है कि नंबर 1, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थीम्स के लिए वी हैव द PYQ सॉल्यूशन रेडी फॉर द ऑल क्वेश्चंस टिल 2023. आप उसको परचेज कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज कि इफ यू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, अगर अच्छी टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज अच्छी होती है, ये मैं आपको एविडेंस शो कर सका हूं. बात प्रमोशन की नहीं है, बात है क्रेडिबिलिटी की, कॉन्फिडेंस की और डिलीवरी की. आपको मैंने शो किया है, ठीक है. तो टेस्ट सीरीज से आपके डायरेक्ट हिट क्वेश्चंस अगर आते हैं, इट विल हेल्प यू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स विच विल गिव यू द एज. ये बहुत बड़ी बात है, एक्स्ट्रा हिट और एक्स्ट्रा एज आपको मिलेगी, जिससे आप लोग अपने आप को बेटर स्कोर कर सकते हैं. थर्ड थिंग इज हैविंग द गुड स्टडी मटेरियल and authentic study material. So our study material is a one stop solution. काफी अच्छे से explained है और self explained है. आप अगर self study करना चाहते हैं तो भी यूज कर सकते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं तो बेस्ट है, हम उसमें वैल्यूएशन करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर आवर टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स जो हमारे मेंस के टाइम पे जस्ट बिफोर मेंस वी गिव द वैल्यू एडिट मटेरियल. एंड वैल्यू एडिट मटेरियल में हम लोग कोटेशन देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, डायग्राम्स देते हैं. तो ये सब चीजें आपके मार्क्स को एनहांस करती हैं. These are the 4 things that you have to keep in mind. हाँ, one thing which I want to tell you, आपके आंसर्स एक दिन में बेटर नहीं हो सकते. You should write daily answers. We have the daily answer writing program. You can check for it. Okay? If you want to connect to our team, contact number I am providing you 9811599537. Okay? You can call on this number or you can visit our center in Old Rajendra Nagar. आप हमारी टीम को फ़ोन कीजिए, वो आपको लिंक शेयर करेंगे. और दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में मेन लोकेशन पे हमारा सेंटर है. आइए और आप मुझसे मिलिए, आप डिस्कशन कीजिए अपनी स्ट्रेटजी. इफ़ यू आर नॉट कमिंग टू दिल्ली नहीं आना चाहते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं. यू टॉक ऑन दिस नंबर, दे विल कनेक्ट यू विद मी. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू. ऑल द बेस्ट एंड आई विल ऑल्सो कम soon, very soon with the paper 1 analysis. All the best. So one more thing I want to tell you, that the PDF of this discussion is available on the Telegram channel and the description में आपका लिंक दिया हुआ है. डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी. ओके, और आपको हमारा सैंपल चाहिए स्टडी मटेरियल का, वहाँ पर मिल जाएगा. आपको हमारे बारे में कुछ जानना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर. ओके.